Hello friends, this is your online tutor Shaunak Vyas. In today's class, we will learn about the concept and preparation of cash book. Let's start. Look at this flowchart very carefully. The place where all the financial transactions of business are recorded first time is called Book of Original Entry or Book of Prime Entry, which is classified into three: subsidiary books, cash book and journal. Credit transaction of goods are recorded in subsidiary books. I have prepared a separate video for subsidiary books. Kindly go through. Link is given below in the description box. Cash transactions of goods are recorded in cash book and rest all transactions are recorded in journal. Let's go ahead. These are few source documents from which we prepare cash book. First is receipts issued by the firm for receiving money through cash, check, demand draft or online. Paying slip for cash deposited into bank. Credit notes issued to the debtors. Invoices issued by the suppliers to the firm. Checks and debit notes issued to the suppliers. And at the end, bank statements. I request all of you to take a screenshot of this. Let's see few rules regarding preparation of cash book. What transactions are recorded in cash book? All cash purchases of goods, cash sales of goods, cash received, cash paid, purchase of assets for cash, payment of liabilities. When I say word cash, I mean to say hard cash or by bank. What transactions are not recorded in cash book? Credit transaction of goods, it is recorded in purchase book. Credit transaction of assets, it is recorded in journal. Credit transaction of liabilities, it is also recorded in journal. Placing of an order. When we place an order, there is neither receipt of goods or cash nor payment of goods or cash, and therefore it is not recorded in any of these books. And at the end, receiving an inquiry or inquiry, this is also not recorded in cash book. Let's go ahead. This is the format of double column cash book having cash and bank column. There are two sides. Left side is called debit or receipt side and right side is called credit or payment side. In debit side, we record date of transaction, name of the party from where we have received the money, R number, that is receipt number, LF is ledger folio, and the next two columns are cash and bank column. When we receive money through cash, we record that amount in cash column, and for receiving check, we record the amount in bank column. That's quite simple and easy to understand. On the other side, there's credit side, and in credit side, we record date of transaction, name of the party or head of expenditure, V number, that is voucher number, LF is ledger folio, and rest two columns are cash or bank column. I request all of you to take screenshot of this. Now I have prepared few hypothetical transactions in the books of Mr. Shaunak. After reading the question, you will try to answer two questions. The first question is, which side we will record the transaction, in receipt side or payment side? And second one, which column, cash column, bank column or both of them? I hope this is clear. That's okay? Be alert. We will spend about 1 minute for each of the transaction. Let's start. The first transaction is of 1st February 2025. Opening cash balance of rupees 35,000 and bank balance of rupees 30,000. It means you have 35,000 hard cash in with you and in your bank you have balance of 30,000. Both the balances are positive balances. Now I have given you task. After reading the question, you will identify two questions, answer of two questions. The first is which side and second question is which column. Now here I have prepared a small demo for you. Okay. Now identify for opening cash balance and bank balance. Both are positive balances. Where will we record? Time of 5 seconds given. Time starts now. Okay. It will be recorded in receipt side. Which columns? Cash amount will be recorded in cash column and bank amount will be recorded in bank column. Now let's see how it is recorded. This is the first transaction. For your convenience, I have highlighted the transaction. This is the same format of cash book. See, in the receipt side, we have recorded date. First, we have recorded the year 2025.
The next column will be this February 1. In receipt side, we have recorded to balance BD. BD is brought down, and what is the amount? Cash ka 35,000 and bank ka 30,000. I hope this is quite simple and easy. First transaction. Let's go ahead. The second transaction is of 2nd February. Cash purchase is 12,000 and cash sales of 18,000. Let us solve them separately. First one is cash transaction of cash purchases of 12,000. When we purchase goods, so goods are coming in the business. So what do we have to do now? We are supposed to make the payment of cash. And in the transaction, it is recorded that we have purchased goods for cash. So goods coming in and cash going out. So when cash are going out, which side we will record the transaction? Yes, you are right. It will be recorded in payment side. Which column? Of course, you are making cash payment, so it will be cash column. Go ahead. The question ka second part is cash sales of 18,000. When we sell goods, goods are going out. So what is coming in the business? Cash is coming in the business. So which side it will be recorded? The receipt side. And in which column we will be recording the same? We will be recording it in cash column. I hope the idea is clear to you. Let's see how it is recorded. This is how we are going to record. Cash purchases we will be recording in payment side. Just look at it very carefully. February 2 buy purchase account. And we are going to write a brief description. It is called narration. Narration is a brief explanation of an entry. It is not possible to remember everything. And therefore, we write a brief description about the transaction. So here we have purchased goods. So we have written word being goods purchased for cash. And amount is 12,000 written in cash column. See the left side, that is debit side. For cash sales, we have written February 2 to sales account. Being goods sold for cash. And amount is written in cash column rupees 18,000. Is it clear? If it is not clear, just go back, look at the transaction once again, and I hope that will be clear to you. Let's go ahead. The next transaction is of 3rd Feb. Wages paid to Ramesh by cash rupees 3,000. This is first part. So what are we doing? We are paying money. Which side we will be recording? The answer is very clear. It will be recorded in payment side. How are we making payment, cash or bank? We are making payment through cash, and therefore which column we will be recording? In cash column. Now here there is one more task. Here you are paying money to Ramesh, but for what reason you are paying money? You are paying money for wages. So while recording the transaction, we will have to write word wages, not the Mr. Ramesh. Okay, let's go ahead. The second part of the transaction, and check issued to Rima rupees 5,000. I'm sorry. So रीमा को हमने क्या किया है? 5,000 का चेक इश्यू किया है. अब क्या इसमें मेंशन किया है कि रीमा को हमने पैसे क्यों दिए? रीजन इज नॉट मेंशनड हियर. जब हमने रमेश को पेमेंट किया था तो रीजन वाज मेंशन कि वेजेस है, तो इसीलिए हमने वहां पे वेजेस वर्ड लिखा. पर रीमा को जब हम पेमेंट कर रहे हैं तो हमको कोई रीजन नहीं दिया गया है. ओके, सो वी विल राइट वर्ड रीमा. बट हमने रीमा को क्या पे किया है? चेक दिया है. पेमेंट वी हैव डन थ्रू बैंक, एंड देयरफॉर वी विल बी राइटिंग अमाउंट इन बैंक कॉलम. तो इसका मतलब यहाँ पे चीज़ एक है कि हमने पेमेंट किया है, पर एक को हमने कैश से पेमेंट किया, एक को बैंक से पेमेंट किया है. ओके, तो आपको याद रखना है जब भी वेजेस पे किया, सैलरी पे किया, ओके, तो ऐसे टाइम पे आपको वेजेस या सैलरी वो वर्ड लिखना है. जो पर्सन को पे किया उसका नाम नहीं लिखना है. ओके, और जब आपको सिर्फ नाम दिया हुआ है, क्या पर्पज से पे किया है वो नहीं दिया, तो देयर यू आर सपोज टू राइट द नेम ऑफ द ट्रांजैक्शन. लेट्स सी हाउ इट इज रिकॉर्डेड. दिस इज हाउ इट इज रिकॉर्डेड. पेमेंट साइड के अंदर February 3 को देखो दो ट्रांजैक्शन ने अलग अलग रिकॉर्ड किया है. पहले हमने लिखा बाय वेजेस, बीइंग वेजेस पेड टू रमेश बाय कैश रुपीज 3,000 इन कैश कॉलम, क्योंकि हमने कैश पेमेंट किया था. February 3 को बाय रीमा अकाउंट, और हमने कैसे पेमेंट किया है? चेक से पेमेंट किया है, इसके लिए हमने उसको बैंक में लिख दिया. ओके, बीइंग चेक इश्यूड टू रीमा, हमने रीमा को चेक दे दिया, इसके लिए चेक का बैंक कॉलम में अमाउंट लिख दिया. आई होप इट इज क्लियर टू यू. लेट्स गो अहेड. 7th of February purchased 4 chairs of 1,000 each and 1 table of 700 each. अभी हमने कुछ परचेज किया है. अब परचेज किया है तो हमने क्या परचेज किया है? यहाँ पे चेयर, टेबल. अब चेयर और टेबल के लिए फाइंड आउट करो हम क्या वर्ड बोलते हैं चेयर्स को, टेबल को. व्हाट इज द टर्म गिवन टू इट? 3 सेकंड का टाइम देता हूँ, ढूंढो, सोचो जरा.
यस यस यस, यू आर राइट। चेयर टेबल को हम बोलेंगे फर्नीचर। ओके, जब हमने फर्नीचर परचेज किया तो हम क्या करेंगे, अब पैसा देने वाले हैं, तो हम कौन से साइड पे रिकॉर्ड करेंगे इसको कैश बुक के अंदर? ऑफ कोर्स वी विल बी रिकॉर्डिंग इन पेमेंट साइड, बराबर। अब हमने पैसे कैसे दिया है, देखो 700 रुपया टेबल का और 1000 मतलब 4 चेयर का पैसा। सो टेबल का और चेयर का पैसा हमने दिया है पेड हाफ बाय कैश एंड हाफ थ्रू गूगल पे। अब हमने कुछ पैसा कैश से दिया, कुछ पैसा गूगल पे के थ्रू दिया। अब गूगल के थ्रू के हम पेमेंट करेंगे। अब गूगल पे इज अ मीडियम यूजिंग विच वी आर पेइंग मनी, बट आपका पैसा जाएगा कहाँ से? आपका कैश गले में से जाएगा या बैंक अकाउंट में से जाएगा? सोचो ज़रा, गूगल पे से पेमेंट करोगे तो कैश गले में से पैसा जाएगा कि फिर बैंक अकाउंट से पैसे जाएगा? सीधी सी बात है, गूगल पे से करेंगे तो बैंक से पैसा जाएगा। तो थोड़ा पैसा हमने कैश से पे किया है, थोड़ा पैसा हमने बैंक से पे किया है, और एग्जैक्टली कितना? हाफ ऑफ मनी। तो अब पहले हमको ढूंढना पड़ेगा कि हम कहाँ कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। तो हम पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, कौन से कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे? कैश और बैंक दोनों कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। कितना पैसा? चलो ज़रा कैलकुलेशन हम लोग देख लेते हैं। देखो पूरा कैलकुलेशन आपके सामने मैंने रेडी करके दे दिया है। चेयर का 4 चेयर्स ऑफ 1000, सो 4000 फॉर दैट। टेबल, एक टेबल 700 रुपये का, तो 700 रुपया उसका, तो टोटल हो गया 4700 का हमको पेमेंट करना है। हाफ पेमेंट बाय कैश, हाफ बाय गूगल पे, तो उसको मैंने डिवाइड बाय 2 कर दिया। तो व्हाट इज द अमाउंट? 2350। तो ये आपका हो गया कैश और बैंक का पैसा। लेट्स सी हाउ इट इज रिकॉर्डेड। देखो हमने कैसे रिकॉर्ड किया। पेमेंट साइड पे गए, February 7 बाय फर्नीचर अकाउंट, क्या हमने लिख दिया? बीइंग फर्नीचर परचेज अमाउंट पेड बाय कैश एंड बैंक इक्वली, क्योंकि हाफ हाफ दिया इसके लिए हमने वर्ड ऐड कर दिया इक्वली। अब कैश में और कैश कॉलम में अमाउंट देख लो कितना है? 2350। बैंक कॉलम में भी 2350। ओके, चलो लेट्स गो अहेड। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 8 फरवरी का, रिसीव्ड अ बेरर चेक ऑफ ₹9000 फ्रॉम मिस्टर हार्दिक। अब हार्दिक नाम का कोई बंदा है जिसके पास से हमने 9000 का बेरर चेक रिसीव किया। अब बेरर चेक क्या होता है कि जहाँ पे कोई लाइन क्रॉसिंग लाइन नहीं किया गया है, एंड जिसके हाथ में वो चेक मिल जाएगा और वो पैसा बंदा बैंक में जाएगा, चेक दिखाएगा कैश काउंटर पे और वो पैसा अपना ले सकता है। दैट इज कॉल्ड अ बेरर चेक। तो जब भी हम बेरर चेक रिसीव करते हैं तो अकाउंटिंग टर्म्स में इट इज क्लियर दैट इट इज टू बी ट्रीटेड एज अ कैश। बेरर चेक को क्या ट्रीट करना होता है? हमको कैश ट्रीट करना होता है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि हमने बेरर चेक रिसीव किया है, कौन से साइड पे हम उसको रिकॉर्ड करेंगे? रिसीव किया तो ऑफकोर्स इट विल बी रिकॉर्डेड इन द रिसीट साइड। कौन से कॉलम में उसको हम रिकॉर्ड करेंगे? बेरर चेक है, भले चेक है, बच्चे क्या मिस्टेक करेंगे? बैंक कॉलम में लिख देंगे, पर वर्ड बेरर चेक दिया है तो हमको कहाँ रिकॉर्ड करना है? कैश कॉलम के अंदर रिकॉर्ड करना है। कितना रुपया है? 9000। वो तो हम सीधा जब कॉलम आएगा तो उसके अंदर रिकॉर्डिंग हम सीखेंगे, और हार्दिक के पास से हमने रिसीव किया तो हार्दिक का नाम लिखेंगे। ट्रांजैक्शन के सेकंड हाफ में जाते हैं। एंड अ क्रॉस चेक फ्रॉम कार्तिक ऑफ ₹6000। तो 6000 से हमने 6000 का हमने कार्तिक के पास से क्रॉस्ड चेक रिसीव किया है। देखो जरा नीचे यही स्लाइड के अंदर राइट हैंड साइड पे देखो, मैंने आपको एक क्रॉस चेक का एग्जांपल दिया है। बोला सर कैसे पता चलता है ये क्रॉस चेक है? चेक के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड टॉप पे देखो, बराबर। लेफ्ट हैंड साइड टॉप पे आप चेक करोगे, वहां पे लिखा है अकाउंट पे। जो चेक के ऊपर ऐसे 2 पैरेलल लाइंस बनाए जाते हैं ऑन अ फेस ऑफ अ चेक, व्हेन यू ड्रॉ 2 पैरेलल लाइंस, सच अ चेक इज कॉल्ड क्रॉस्ड चेक। वहां पे तो अंदर मेंशन भी कर दिया है अकाउंट पे ही, मतलब जिसका नाम लिखा गया है सिर्फ उसके अकाउंट में पैसे जाने चाहिए, किसी को हैंड टू हैंड कैश में पैसा देना नहीं है कैश काउंटर में से। अभी आपके लिए एक क्वेश्चन है कि आप क्रॉस चेक लेकर के आप बैंक में जाते हो कैश काउंटर पे, आपको पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सोचो और बताओ। क्रॉस्ड चेक लेके गए बैंक में कैश काउंटर पे, तो कैश काउंटर वाला पैसा देगा या पैसा नहीं देगा? सीधी सी बात है, कोई पैसा आपको मिलने वाला तब नहीं है इफ इट इज अ क्रॉस्ड चेक। तो पढ़ने में सिर्फ हमको एंट्री नहीं सीखनी है, हमको ये नॉलेज, बैंकिंग ट्रांजैक्शन का भी नॉलेज हमको लेना है। ओके, सो अब हमने क्रॉस चेक रिसीव किया है। क्रॉस चेक रिसीव किया तो पैसा हमारे पास सीधा कहाँ पे जाने वाला है? बैंक में जाएगा। इसके लिए कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। लेट्स सी हाउ इट इज रिकॉर्डेड इन कैश बुक। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड। हार्दिक के पास से हमने 9000 का बेरर चेक रिसीव किया था, इसके लिए हमने कैश कॉलम में लिखा, और कार्तिक के पास से 6000 रुपये का क्रॉस चेक रिसीव किया, इसके लिए बैंक कॉलम में लिखा। हर जगह पे आपको पॉज करके नरेशन भी पढ़ना होगा बेटा, एग्जाम में आपको नरेशन लिखना इक्वली इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज यू विल नॉट फाइंड मार्क्स। ओके, लेट्स गो अहेड। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन
9th को हमने 8th का ट्रांजैक्शन सॉल्व कर लिया है। ये मैंने आपको रेफरेंस के लिए 8th का ट्रांजैक्शन दिया है, हमको फिलहाल सॉल्व करना है 9th का ट्रांजैक्शन। बेरर चेक रिसीव फ्रॉम हार्दिक वॉज डिपॉजिटेड इनटू बैंक एंड क्रेडिटेड इनटू अवर अकाउंट। मतलब हमने ऊपर वाले ट्रांजैक्शन में हार्दिक के पास से जो 9,000 रुपये का चेक रिसीव किया वो हमने बैंक में जाकर के डिपॉजिट कर दिया। अब डिपॉजिट कर दिया और हमारे अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो चुका है। सोचो और बताओ हम इसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे। हमने जब हार्दिक के पास से चेक रिसीव किया था बेरर चेक, तो उसको हमने रिसीट साइड के कैश कॉलम में रिकॉर्ड किया था। अभी वो चेक हम अपने ऑफिस में से लेके गए बैंक के अंदर और बैंक में वो चेक डिपॉजिट कर दिया, तो वो चेक हमारे पास से चला गया है। सो बेरर चेक गोइंग आउट ऑफ द फॉर्म, बेरर चेक चला गया। अब चला गया तो कौन से साइड पे रिकॉर्ड हो जाएगा वो? इट विल बी रिकॉर्डेड ऑफ कोर्स इन पेमेंट साइड। क्योंकि हमने बेरर चेक को कैश कॉलम में रिकॉर्ड किया था, तो उसको जब हम देंगे तभी भी हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? कैश कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। अब चेक गया और बैंक के अंदर पैसा डिपॉजिट हुआ, तो हमारा बैंक बैलेंस पहले जितना था उससे बढ़ गया। इसका मतलब चेक भले बाहर गया है पर हमारा बैंक बैलेंस इंप्रूव भी हुआ है। सो हियर देयर आर टू थिंग्स टू बी डन। एक चेक बाहर गया और दूसरा बैंक बैलेंस बढ़ा, तो हमको उसको रिसीट साइड पे भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा बैंक कॉलम के अंदर। अब आप समझो वंस अगेन, बेरर चेक गोइंग आउट पेमेंट, because bank balance is going up, therefore we are recording in receipt side also. Such an entry is called contra entry when both the sides, cash column, bank column, are affected in one transaction. Such a transaction, okay, is identified as contra entry. क्या बोलेंगे इसको? contra entry। चलो इसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं समझते हैं। देख लो, पहले बेरर चेक आपके पास से बाहर गया था। पहला पेमेंट साइड को देखना जरा शांति से, पेमेंट साइड पे फोकस करो। February 9 बाय बैंक, बराबर है। आपने बाय बैंक क्यों लिखा? क्योंकि पैसा कहाँ जा रहा है? बैंक में जा रहा है। अब क्या जा रहा है आपके पास से? बेरर चेक। अब बेरर चेक को क्या ट्रीट करना होता है? कैश। इसके लिए हमने कैश कॉलम में लिखा है 9,000। देखो यहाँ पे एक चीज अलग है, LF के कॉलम में मैंने C लिखा है, दिख रहा है आपको? यस। अब वो जो LF के कॉलम में C लिखा है, तो वो C का मतलब होता है कॉन्ट्रा। C का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रा। अब जरा ऑपोजिट साइड पे चेक करो, रिसिप्ट साइड पे February 9 टू कैश, और अमाउंट मैंने कहाँ लिख दिया? क्योंकि बैंक बैलेंस मेरा बढ़ रहा है, इसके लिए मैंने बैंक कॉलम में लिखा है 9,000 रुपीज और LF के कॉलम में लिख दिया C। बताओ C का मतलब क्या है? कॉन्ट्रा। सो जब भी आप ऐसे कॉन्ट्रा एंट्री पास करोगे तो आपको वहां पे मेंशन करना पड़ेगा LF के कॉलम के अंदर दैट इट इज अ कॉन्ट्रा एंट्री। और नरेशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। लेट्स गो अहेड। 11 फरवरी को पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹1800। हमने लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया है। अब यहाँ पे आपको मेंशन करके नहीं दिया है कि वो कैश में पे किया है या बैंक में पे किया है। आप अपने कॉलेज में पूछ सकते हैं टीचर को कि ऐसे ट्रांजैक्शन को कैसे ट्रीट करना होता है। अगर वो आपको अलाउ करते हैं कैश में तो कैश में करिए, बैंक में बोलते हैं तो बैंक में करिए। यहाँ पे मैंने कैश ट्रीट किया है उसे, क्योंकि बैंक इंश्योरेंस कंपनीज में आप कैश जा करके भी पैसा भर सकते हो। ओके, अब आपको एक और चीज़ समझनी है, क्योंकि पैसा बाहर जा रहा है तो आपने पेमेंट में रिकॉर्ड किया, कैश कॉलम में क्यों रिकॉर्ड किया ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब एक बात और इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, दैट यू आर पेइंग लाइफ इंश्योरेंस। ये बिजनेस इंश्योरेंस का पैसा नहीं है, लाइफ इंश्योरेंस है। व्हेन बिजनेस मनी इज यूज्ड फॉर सम पर्सनल पर्पस, जरा बताओ इसके लिए कौन सी अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी है? देयर इज वन अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी यूज्ड कि जब आपने इंश्योरेंस का पैसा पे किया तो आप वहां पे इंश्योरेंस लिखते थे, पर ये लाइफ इंश्योरेंस है। तो लाइफ इंश्योरेंस के लिए ऐसी कौन सी अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी है? सोचो सर। ओके, आई हैव गिवन यू टाइम। अब इसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं वो देखते हैं, और रिकॉर्डिंग के टाइम पे आपको आंसर भी मिल जाएगा। यस, देख लो जरा, पेमेंट साइड पे हमने लिखा है February 11 बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट। तो जब भी आप लाइफ इंश्योरेंस का पेमेंट करते हो तो उसको हम बोलेंगे ड्रॉइंग्स। अब वहाँ से मैं लाइफ इंश्योरेंस की जगह पे मैं लाइफ वर्ड हटा दूँ, खाली इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट करूँगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। बहुत संभाल करके आंसर को ट्रीट करना है। ओके, और कौन से कॉलम में मैंने आंसर लिखा? 1800। वंस अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, आप अपनी कॉलेज में वेरीफाई करो, कॉलेज के टीचर जैसे बोलते हैं वैसे आप लोग उसको आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इज 13 फरवरी
ये 8 फरवरी का ट्रांजैक्शन मैंने आपके रेफरेंस के लिए दिया है। अभी हम सॉल्व करने वाले 13 फरवरी। पहले 13 को हम रीड करते हैं। चेक रिसीव्ड फ्रॉम कार्तिक रिटर्न डिसऑनर। अब क्योंकि कार्तिक के पास से हमने कौन सा ट्रांजैक्शन किया था वो रिफर करने के लिए मैंने आपको 8 फरवरी, एग्जाम में आपको कैसे करना होगा, सब ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिटर्न इन द लाइन। तो आपने जैसे ये 13 का ट्रांजैक्शन पढ़ा तो आपको ऊपर ढूंढना पड़ेगा कि कार्तिक कहाँ पे लिखा हुआ है, फिर आपको ध्यान से कार्तिक आपको ढूंढना है और 1 सेकेंड वो ट्रांजैक्शन को रिफर करना है। तो हम यहाँ पे रिफर करते तो 8 फरवरी को हमने कार्तिक के पास से 6000 रुपीज़ का क्रॉस चेक रिसीव किया था। जब हमने क्रॉस चेक रिसीव किया था तो हमने कहाँ रिकॉर्ड किया था उसको, रिसीट साइड के बैंक कॉलम में। अब वो डिसऑनर हो गया। बोला सर ये डिसऑनर क्या होता है? डिसऑनर का मतलब होता है वो चेक बाउंस हो गया। बाउंस होना मतलब आपके अकाउंट में वो पेमेंट नहीं आया। कार्तिक ने आपको चेक दिया, आपने जाकर के बैंक में डिपॉजिट कर दिया कार्तिक का चेक, ठीक है। अब बैंक वाले ने बोला कि कार्तिक के अकाउंट में पैसा नहीं है या कोई भी रीजन से वो चेक क्लियर नहीं हुआ है। सच अ चेक इज कॉल्ड बाउंस चेक और चेक डिसऑनर। अब चेक डिसऑनर हुआ है तो आपने पहले कार्तिक का ट्रांजैक्शन कहाँ पे रिकॉर्ड किया था? रिसीट साइड के बैंक कॉलम में, क्योंकि आपको 6000 रुपये बैंक में मिलने वाला था। क्या अब वो मिलने वाला है? बैंक ने आपको बोल दिया 13 तारीख को कि वो चेक बाउंस हो गया है, आपको पैसा मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला है। तो उतना बैंक बैलेंस आपका क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है। वेयर आर यू गोइंग टू रिकॉर्ड? यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड इन पेमेंट साइड बैंक कॉलम। लेट्स सी हाउ इट इज रिकॉर्डेड। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड February 13 बाय मिस्टर कार्तिक या कार्तिक अकाउंट, और अमाउंट जाएगा बैंक कॉलम में 6000 रुपीज़। अगर इसको आपको ट्रांजैक्शन समझना है तो ज़रा रिसीट साइड में आप February 8 का ट्रांजैक्शन देखो। देखा आपने? February 8 टू कार्तिक अकाउंट हमने कितना लिखा था? 6000। तो ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया। एक हमने लिखा रिसीट साइड पे, तो उसको कैंसिल करने के लिए हमने क्या किया? पेमेंट साइड पे लिख दिया ट्रांजैक्शन। तो क्या हो गया? कट हो गया। इट इज़ नॉट लाइक अवर रफ बुक कि हमने अमाउंट लिखा, ठीक नहीं हुआ तो हमने कट कर दिया वहाँ पे। तो वी कैन नॉट कट डायरेक्टली सब एनीथिंग इन अकाउंटेंसी। तो इसको कट कैसे किया जाता है? दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कट इट। ओके, नेक्स्ट वन। परचेज गुड्स ऑफ ₹8000 फ्रॉम नीरव ऑन क्रेडिट। नीरव के पास से हमने 8000 का गुड्स क्रेडिट पे परचेज किया है। कौन सा चैप्टर हम सॉल्व कर रहे हैं? कैश बुक। क्या उसमें क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है? रिकॉर्ड ही नहीं होता है। अब मैं आपको सवाल पूछता हूँ, कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? तो आपको बोलना है सर रिकॉर्ड ही नहीं होगा, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। समझ रहे हो आप लोग बेटा? ओके, सो नो एंट्री इन कैश बुक फॉर दिस ट्रांजैक्शन। तो आप बोलोगे सर मुझे ऐसे फ्री में मार्क्स मिल जाएंगे तो मुझे रिकॉर्डिंग नहीं करना है? नो, यू आर नॉट गोइंग टू गेट मार्क्स अनलेस एंड अनटिल यू राइट अ नोट। अब ये नोट कैसे लिखना होता है? लेट्स सी, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू राइट नोट। जब आपका जहाँ पे आपका आंसर खत्म हो जाता है वहाँ पे आपको एक हेडिंग देना है नोट। सीरियल नंबर आपने दे दिया 1, डेट डाल दिया 14 फरवरी 2025। थोड़ा सा डेट लिखने में मिस्टेक हुआ है और वहाँ पे डैश करके क्या रीजन लिखोगे? नो एंट्री फॉर गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। आई होप इट इज क्लियर। लेट्स गो अहेड। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई बच्चा ये नोट नहीं लिखेगा तो उसको मार्क्स वो ट्रांजैक्शन के नहीं मिलेंगे। Though it is not to be recorded in cash book, if you fail to write note, you are not eligible to get marks for the same. Next transaction, bank paid us interest ₹325. बैंक ने हमको इंटरेस्ट दिया। देखो कितना स्मार्ट क्वेश्चन बनाया है। बैंक ने हमको इंटरेस्ट दिया, तो जैसे पेड वर्ड है ना, तो बच्चे क्या करते हैं? पेमेंट में डायरेक्टली एंट्री डाल देते हैं, क्योंकि पेड वर्ड है। तो जहाँ पे पेड वर्ड दिखा तो पेमेंट में डाल दिया, रिसीव्ड देखा तो रिसीव्ड में डाल दिया। नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। बैंक ने पे किया है तो हमने बैंक के पास से क्या किया है? वी हैव रिसीव्ड। आर यू गेटिंग इट? दिस इज हाउ दे आर गोइंग टू ट्विस्ट द क्वेश्चंस। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द ट्विस्ट। तो कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? रिसीट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। कौन सी कॉलम में? बैंक कॉलम में। रिकॉर्डिंग कैसे करना है? ऐसे रिकॉर्ड करना है। February 15 टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। नरेशन में हम लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड और अमाउंट जाएगा ₹325 बैंक कॉलम के अंदर। I hope the matter is clear to you. Next transaction is bank paid insurance premium ₹7250. याद करो जरा, वहां पे था लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। क्या टर्म आपने यूज किया था? यस, यू आर राइट, ड्रॉइंग्स। यहाँ पे क्या लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम वर्ड लिखा है? नो। क्या वर्ड है यहाँ पे? इंश्योरेंस प्रीमियम। तो यहाँ पे आपको इंश्योरेंस प्रीमियम वर्ड लिखना पड़ेगा ₹7250। तो ये फर्स्ट साइड है, तो हम इसको पहले रिकॉर्डिंग करना सीखते हैं। बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, बैंक ने हमारे नाम से पेमेंट किया है तो हमारे पास से पैसे गए हैं, सो इट इज रिकॉर्डेड इन पेमेंट साइड। कौन सी कॉलम से पेमेंट हो जाएगा? बैंक कॉलम से पेमेंट हो गया। बैंक से पेमेंट हो गया तो बैंक कॉलम हमने रिकॉर्ड कर दिया।
और एंड कलेक्टेड मतलब बैंक कलेक्टेड ₹4150 एज इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड, मतलब हमने कोई कंपनी का बॉन्ड खरीदा था पहले, उसके ऊपर हमको इंटरेस्ट मिला। अगर हमको इंटरेस्ट मिला है, रिसीव किया है, बैंक ने हमारे नाम पे कलेक्ट किया है, मतलब हमने कलेक्ट किया है, वी हैव रिसीव्ड मनी, वेयर आर वी गोइंग टू रिकॉर्ड इन द रिसीट साइड। विच कॉलम वी विल राइट द अमाउंट? बैंक कॉलम में, क्योंकि बैंक के अंदर पैसा गया है, इसके लिए बैंक कॉलम में। लिखना कैसे है इसको? ऐसे लिखना है। पहला पेमेंट साइड पे फोकस कर लो। आपने लिखा बाय इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट ₹7250 इन बैंक कॉलम, और फिर रिसिप्ट साइड पे आप देखो February 16 टू इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड अकाउंट ₹4150। ठीक है, चलो गोइंग फॉर द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 20th February। दिस इज द लास्ट ट्रांजैक्शन, क्योंकि मैंने ही क्वेश्चन बनाया तो मुझे पता है कि ये लास्ट ट्रांजैक्शन है, दो इट इज नॉट द एंड ऑफ February। डिस्ट्रीब्यूटेड 10 स्टडी बैग्स अमॉन्ग यंग डॉटर्स लिविंग इन द विसिनिटी। आपके एरिया में रहने वाले 10 बच्चों को मिस्टर शौनक ने क्या किया? 10 बैग गिफ्ट किया है। ओके, वर्थ ₹270 ईच। एक बैग की कॉस्ट कितनी है? ₹270 है। ओके, एंड द अमाउंट पेड बाय चेक, वेयर टू रिकॉर्ड? सोचो और बताओ। क्योंकि अमाउंट हमने चेक से पे किया है तो सीधी बात चली जाएगी, पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। चेक से रिकॉर्ड किया, इसके लिए बैंक कॉलम के अंदर जाएगा। अब थोड़ा हमको कैलकुलेशन भी समझना पड़ेगा। एक बैग नहीं दिया है, 10 स्टडी बैग दिया है। एक बैग की कॉस्ट कितनी है? ₹270। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? एक बैग का अगर ₹270 है तो 10 बैग का कितना हो जाएगा? सोचो और बताओ जरा। ऑफकोर्स 10 × 270 विल बी ₹2700। देख लो जरा कैसे रिकॉर्ड किया। पेमेंट साइड पे हमने लिखा बाय डोनेशन अकाउंट, ये डोनेशन है। यू टू अंडरस्टैंड दिस टर्मिनोलॉजीज। मैंने जानबूझ के आपको ऐसे ट्रांजैक्शन ढूंढ के दिए कि जहाँ पे आपको क्वेश्चन के अंदर टर्मिनोलॉजी ना दिया हो, आपको ढूंढना पड़ेगा वो टर्म्स। ओके, जैसे फर्नीचर हो गया, वो आपके लिए ग्रेट टर्म था। यहाँ पे डोनेशन हो गया, फिर ड्राइंग्स हो गया। ओके, तो बहुत ध्यान रखना बेटा। ऐसा अगर आपने जैसे डोनेशन किया तो वहाँ पे वर्ड आना चाहिए डोनेशन अकाउंट, अमाउंट चला जाएगा 2700 इन बैंक कॉलम। ओके, अब जब ये सब ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो गए, जैसे क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने बनाया, मुझे पता है कि सब ट्रांजैक्शंस खत्म हो गए, अभी आपको क्या करना पड़ेगा? इसका टोटलिंग करना पड़ेगा। अब टोटलिंग कैसे किया जाता है? देखो एक बार स्लाइड्स मैंने आपके लिए टोटलिंग स्लाइड्स बनाए हैं। अब ये देखो जरा ध्यान से, स्लाइड को पहले समझो। जो सबसे पहली कॉलम आपको दिख रही है वो है रिसीट साइड कैश कॉलम। जितने भी ट्रांजैक्शंस थे उसका मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, आपके सामने रख दिया। दूसरा जो कॉलम आपको दिख रहा है वो है पेमेंट साइड कैश कॉलम, मतलब दोनों कैश कॉलम ही है, एक रिसीट साइड का, एक पेमेंट साइड का। पहले मैंने दोनों जन का टोटल कर लिया। रिसीट साइड का टोटल जरा देखो नीचे कितना लिखा है। व्हाट इज द रिसीट साइड का टोटल? 62,000। व्हाट इज पेमेंट साइड का टोटल? 28,150। अब देख के मुझे बताओ दो में से बड़ा कौन है? रिसीट साइड बड़ा है कि पेमेंट साइड बड़ा है? सीधी सी बात है, रिसीट साइड बड़ा है। देखो बाजू में मैंने कैलकुलेशन दिखाया है। डेबिट साइड मतलब रिसीट साइड का 62,000 माइनस क्रेडिट साइड का 28,150, टोटल बैलेंस आपके पास बच गया 33,850। अभी हमने कितने कॉलम बनाए वहां पे? कैश कॉलम और बैंक कॉलम। अभी हमने कैश का टोटलिंग कर लिया। अभी ये रफ वर्क चल रहा है, ये आपका रफ पेज है, ठीक है। अभी हम वैसे ही हम बैंक का भी करेंगे। पहला क्या है? रिसीट साइड ऑफ बैंक कॉलम, दूसरा है पेमेंट साइड ऑफ बैंक कॉलम। रफ में मैंने टोटल कर लिया दोनों जन का। चलो रिसीट साइड बैंक कॉलम का टोटल क्या है? यस 49475। पेमेंट साइड बैंक कॉलम का टोटल क्या है? 23,300। फिर हम क्या करेंगे? अब टोटलिंग करेंगे। कौन सा साइड बड़ा है उसमें से हम छोटा वाला साइड माइनस कर देंगे, डेबिट साइड माइनस क्रेडिट साइड। टोटल बैलेंस आपके पास बच गया 26,175। अब आपने रफ वर्क में दोनों का टोटल कर लिया। अब टोटल करने के बाद आपको क्या करना होता है? उसको लिखना होता है। अब लिखते कैसे? देखो जरा नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैंने आपको शो किया है। पहले आप पेमेंट साइड पे जाओ, February 28। अब बोला सर 28 फरवरी तो आपने कहीं लिखा ही नहीं था, तो ये डेट आपने कैसे आइडेंटिफाई कर लिया? पहले आपने ये देखा 2025 इज नॉट अ लीप ईयर। लीप ईयर नहीं है तो उसमें कितने दिन होते हैं? 28 दिन होते हैं। अगर लीप ईयर होगा तो वो उसमें हो जाएंगे 29 डेज। सो 2025 एज इट इज़ नॉट अ लीप ईयर, ओके, वहाँ पे मैंने लिख दिया February 28 बाय बैलेंस CD। फिर कैश का बैलेंस कितना आया था जरा मैं आपके लिए देख वापस एक बार ले दिया। देखो मैंने बराबर है, कैश कॉलम का कितना बैलेंस हो गया? 33,850 एंड बैंक कॉलम का कितना टोटल है? 26,175। देखो वही मैंने बैलेंस लिख दिया, कैश कॉलम में कैश का बैलेंस, बैंक कॉलम में बैंक का बैलेंस। बराबर, आपके लिए हाईलाइट किया, एग्जाम में आपको हाईलाइट नहीं करना है बेटा,
और उसी को उठा के मैंने नेक्स्ट मंथ में कैरी फॉरवर्ड किया है मार्च महीने की 1 तारीख को। बाय बैलेंस, सॉरी वहाँ पे बाय बैलेंस नहीं आना चाहिए, टू बैलेंस BD आना चाहिए। अमाउंट जो भी है, जो लिखा था वही है, मैंने कॉपी पेस्ट किया, इसके लिए मिस्टेक हुआ है बेटा। एग्जाम में आपको बहुत केयरफुल रहना है बेटा। अब आपको थैंक यू बोलने का टाइम आया है, आपको और ऐसे सब लोगों को जिन्होंने मुझे ये प्रेजेंटेशन बनाने में हेल्प किया है, स्पेशली माई फ्रेंड्स दोज हु हैव गिवन मी देयर लैपटॉप फॉर प्रिपेयरिंग दिस प्रेजेंटेशन। थैंक you very much to them. I request all of you to take a screenshot wherever necessary. Go back and take screenshot and save the video link for your future reference. आप वीडियो लिंक कॉपी करके अपने व्हाट्सएप में पर्सनली कहीं पे सेव करके रखो, so that whenever you want to refer you can refer it. I have worked hard a lot for you. Unless you convey me, I won't be able to understand and improve. So please do like, comment, share and subscribe. Thank you very much. This is your teacher Shaunak Vyas. Bye everyone.